honorable judges of High Court of Madhya Pradesh, the learned judicial officers. I have a long list. I will not repeat all the names. My dear brothers and sisters and colleagues at the bar, I am truly honored and privileged to be here amongst you to share with you my experience, whatever I have learned over a period of time as far as the trial advocacy skills are concerned. This is a program which is not going to be about any substantive law or procedural law. So I'm not going to be talking to you about any sections of law. Let me tell you, all of us are exposed to examination in chief and cross-examination since our childhood. So when you have a fight with your sibling, your parents ask you, "Kya hua? Kisne mara?" So that's where the examination in chief begins. And as you grow up, you come late from the school, you are asked, "Kahan the? Itni der kyun ho gayi?" So there is an examination in chief going on. And as you grow older and you're working, and I'm saying in a lighter vein, and you come back home after dinner and somebody's already waiting for you for dinner, you are told, "Aaj fir khana kha ke aayoge bahar." So that's a cross-examination. So there is a difference when information was sought from you, कि कहाँ थे, इतनी देर क्यों हो गई, to a suggestion कि बाहर खाना खा के आए होगे आज. That means something is being conveyed to you and you are being asked to say yes or no. So we have all experienced it, but yes, when we come into this profession, we need to relearn it and relearn it in such a fashion that we are able to efficiently assist the court. You see, the skills are all about us being efficient because the judges are the consumers of our skills. हम जो भी कोर्ट में काम करते हैं, अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य ये होता है कि जजेस को कोर्ट को असिस्ट करें, और जितना एफिशिएंट हम होंगे उतनी ही एफिशिएंट हम अपनी कोर्ट को बना पाएंगे. सो ये जो स्किल्स हैं, इसका एम यही है कि हम अपने आप को एफिशिएंट बनाएं. वी लर्न दिस स्किल so that we are able to help in administration of justice. I have a small presentation that I wish to present before you. This is Windows. Yes. So since आप लोगों ने टॉपिक चुना आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, तो मेरी पहली स्लाइड ये है कि व्हेन डू वी क्रॉस एग्जामिन. बड़ा छोटा सा सवाल उठता है, कब क्रॉस एग्जामिन करते हैं. तो क्रॉस एग्जामिनेशन इज नीडेड जब एक ऑपोजिट पार्टी अपना विटनेस लाती है, उसका एफिडेविट एविडेंस फाइल करती है सिविल केसेस में, या उसको एग्जामिन करती है इन चीफ. यू हैव टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस, बिकॉज अदरवाइज इफ यू डोंट क्रॉस एग्जामिन, उसकी टेस्टिमनी पढ़ी जाएगी और हो सकता है आपके खिलाफ हो, आपके क्लाइंट के खिलाफ हो. तो क्रॉस एग्जामिनेशन की ज़रूरत पड़ती है. सो अपॉर्चुनिटी हमेशा दी जाती है क्रॉस एग्जामिन करने की. नाउ therefore that takes us to the first question. So examination in chief. एग्जामिनेशन इन चीफ में क्या होता है? एक विटनेस आता है एक पार्टी का. दैट विटनेस हैज टू टेल द कोर्ट कि क्या हुआ है. What is the story? What is it that the witness knows? So it is very important that we learn how to extract this story from the witness. Now, you've seen in some cases, there is like criminal trials, you only have oral examination in chief. वहाँ पर कोई एफिडेविट इन एविडेंस नहीं होता. 138 केसेस में होता है एफिडेविट इन एविडेंस, बट ज़्यादातर केसेस में आपने देखा है ओरल एग्जामिनेशन इन चीफ ही होता है. सो बहुत ज़रूरी है हमें ये जानना कि ओरल एग्जामिनेशन इन चीफ जब होता है, या एफिडेविट भी जब हम बनाते हैं, तो कैसे बनाएं उसको. एंड हमें कई बारी कुछ डॉक्यूमेंट्स भी प्रूव करने होते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ में, जो डॉक्यूमेंट्स दूसरी पार्टी ने डिनाई करे होते हैं. तो हमें वो उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है जब हम एग्जामिनेशन इन चीफ की तैयारी करते हैं. एंड therefore by examination in chief we present to the court facts which are relevant, or the facts which are an issue. We need evidence on those facts. Now इसकी तैयारी कैसे करें?
एग्जामिनेशन इन चीफ की। हर एक किसी का अपना तरीका होता है। हमें लॉ स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता कि हम एग्जामिनेशन इन चीफ की तैयारी कैसे करें, हाउ डू वी प्रिपेयर। इट इज़ नॉट ए सब्जेक्ट, इट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर करिकुलम. So we all learn by seeing our seniors or by seeing others that how they are going about the business of preparing for cross examination. But there is a method also, and my endeavor today is कि मैं आपको वो मेथड जो है जो हमने सीखा है, ऐसे जैसे सचदेवा ने बताया 2002 में एक ट्रेनिंग सेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था. We were all trained and we have been training lawyers across the country on these skills. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैं आपसे जो हमने सीखा है आपके साथ शेयर कर सकूं. तो प्रिपरेशन में सबसे बड़ी जो बात होती है, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई व्हाट आर द फैक्ट्स दैट आर इन डिस्प्यूट. कभी भी कोर्ट में खड़े होकर अगर आप एग्जामिनेशन इन चीफ की तैयारी करेंगे तो आप काफ़ी कुछ मिस कर जाएंगे. और प्लीज़ रिमेंबर, एग्जामिनेशन इन चीफ की तैयारी आप अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हैं. आपका क्लाइंट आपके पास बहुत उम्मीद लेके आया है. इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट दैट वी प्रिपेयर sufficiently in advance for examination in chief, and therefore we need to read, we need to talk to the client, और हमें देखना होगा कि क्या facts हैं which are in dispute and what are the issues that are required to be addressed by the evidence of the parties. आपको अपने क्लाइंट से काफ़ी डिटेल में बात करनी होगी. ये मत सोचिए कि हम कोर्ट में 10 मिनट पहले बुला लिया, आधा घंटा सुबह पहले बुला लिया तो तैयारी हो जाएगी. नहीं होगी, क्योंकि जब आप क्लाइंट से बातचीत शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी कुछ और भी है उससे जानने का. तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप क्लाइंट को बुलाएं और डिटेल में उससे बात करें, समझें कि उसको क्या पता है. प्लीज़ रिमेंबर, जो एविडेंस दे रहा है विटनेस, उसकी कहानी जज को हमने बतानी है, अपनी कहानी नहीं बतानी. इट इज़ नॉट ए स्टोरी ऑफ द लॉयर दैट हैज़ टू गो टू द जज. इट इज़ द स्टोरी ऑफ द विटनेस दैट हैज़ टू गो टू द जज. सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मीट योर क्लाइंट, इंटरव्यू हिम, डिस्कस विद हिम, आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट्स कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो उस विटनेस से हमने प्रूव कराने हैं. अगर आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट उस विटनेस को दिखाएंगे जो उसने कभी देखा ही नहीं होगा तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन ही नहीं स्टैंड कर पाएगा और विटनेस आपका डॉक्यूमेंट कभी प्रूव ही नहीं होगा. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो इन एडवांस. यू नो, प्रिपरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्किल्स, नॉट ओनली फॉर ट्रायल बट इवन अदरवाइज. एंड देन आपके जो विटनेस की स्टोरी है उसको आपको डिफरेंट टॉपिक्स में डिवाइड करना होगा. आई टेल यू हाउ. आप सब ने नॉवेल्स पढ़े होंगे, कहानियां पढ़ी होंगी. some novels are very thick, some are thin. So novels also have different chapters, chapter 1, chapter 2, chapter 3. कुछ नॉवल जब आप पढ़ते हैं तो एक बार आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आखिर के चैप्टर तक आप छोड़ना नहीं चाहते, चाहे रात के 2 बज जाए. और कुछ नॉवेल्स ऐसे होते हैं जो आप उठाते हैं और 10 मिनट में कहते हैं बहुत बोर हो गए. क्यों होता है ऐसे? एक स्टोरी है जो चलती है और आपको बांध के रखती है. You feel so good. You read that story. It is consistent, it is flowing, and it is taking you to a logical end. और कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जो आप कुछ पेज पढ़ने के बाद कहते हैं पता नहीं क्या लिखा है. सो इमेजिन आपका एग्जामिनेशन इन चीफ आपने कराया. दैट स्टेटमेंट इज देयर बिफोर द जज.